Hello everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Padma Deshpande. Today I am going to talk on the subject Integrated Marketing Communication. This is second year BMS SEM 4 subject and it is offered under the marketing specialization in IMC. Today I am going to tell you about the different elements or the tools of IMC. So let's begin. IMC is basically, it's a concept. It is a marketing communication concept which involves a mixture of different marketing tools, and it is prepared in a comprehensive manner, and it evaluates the measure, or it measures the success of communication. So it is a tool which is used to communicate to your customers in different formats, and it utilizes different communication disciplines. Now, what are the main features of IMC? Basically, here in marketing, basically customer is the main focal point. He is the center point. Marketing starts with identification of need of the customer. So in IMC also, customer is going to be your focal point, because whatever messages are going to be prepared, it is for the customers. Here different communication mix is used, like advertising is used, sales promotion is used, publicity is used, public relation is used. So different formats of communication mix is used to build a relationship with your customer. The customer is encouraged to respond to your communication. The customer comes to know about your product. There is an awareness about your products and services, and the customer responds to your messages. That's why the message has to be consistent, and this message is given in the form of advertisements. Through sales promotion also, you're trying to give the same type of message to your customer, and this has greater reach because you are using different types of communication channels or communication modes to reach to different types of people. Like people who are situated in the urban area, you can use a different communication mix. When people are situated in rural area, their different communication mix can be used. So it helps to reach customers far and wide, and it has a higher transparency. Now, why IMC is important? See, communication as such, it is a two-way process. So to understand what your customer wants and to offer what your customer wants, you need a medium and a message. So IMC uses different communication methods to reach to your customer. This helps in creating a goodwill for the organization. It helps in creating awareness टू द कस्टमर्स. हम बहुत टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं. कुछ मैसेजेस जो होते हैं वो सोशल कॉज के लिए होते हैं. कुछ मैसेजेस जो होते हैं दे टेल अबाउट द प्रोडक्ट, द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की बेनिफिट्स क्या हैं. इसके लिए हम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं टू convey some message to the customers. Then because the awareness is created, what happens is the customer comes to know that such and such product exists in the market. So what happens is demand gets generated. When the demand gets generated, automatically the supply increases to meet that demand. So IMC helps in increasing sales. It also helps in educating the customers. It persuades the buyers that they should buy the product. You can reach different markets, you can expand your markets, you can reach the rural customers. It helps to maintain the customers. Then it motivates the buyers, and in case of any negative publicity, if a product, if a company is facing certain kind of negative publicity, so with the help of different communication strategies, जैसे कि बीच में जब भी मैगी नूडल्स का जो नेगेटिव पब्लिसिटी उनको जो हो रहा था, तो दे adopted certain promotional strategies. देन उन्होंने पब्लिक रिलेशंस के माध्यम से दे ट्राई टू रिमूव द नेगेटिव इम्पैक्ट, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड जो बायर्स का क्रिएट हुआ था, तो उन्होंने अपने
एडवर्टाइजमेंट्स में, प्रमोशनल मैसेजेस में उन्होंने जो भी मिथ जो लोगों के दिमाग में था या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको क्लियर करने की कोशिश की। एंड आईएमसी की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ होती है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो, ऑटोमेटिकली दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ देयर आर डिफरेंट टूल्स दैट आर यूज्ड इन आईएमसी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, ये सबसे फेमस एक वेल नोन टूल है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन देर आर डायरेक्ट मार्केटिंग कैन बी डन। देन नाउअडेज इंटरनेट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, लॉट ऑफ प्रमोशंस आर डन थ्रू द सोशल मीडिया। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। देन देर आर सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशंस में क्या होता है, कूपन्स आर ऑफर्ड, डिस्काउंट्स आर गिवन, देन मोर ऑफ पुश स्ट्रैटेजी इज यूज, देन प्राइस डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड. So there are different promotional strategies which are used. Then publicity is done. Publicity is a non-personal communication, and इसमें क्या होता है, जैसे कि here I would like to cite the example of a movie. जब मूवी कोई रिलीज होने वाली होती है तो वो मूवी के प्रमोशन के लिए द स्टारकास्ट जो होता है, जो एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, दे कम ऑन अ लाइव शो, जैसे कि कपिल शर्मा का शो हो गया या ऐसे कोई लाइव शो होता है, इंडियन आइडल का लाइव शो हो गया, तो वहां पे वो स्टारकास्ट आते हैं एंड दे क्रिएट दे प्रमोट देयर मूवी सेइंग दैट ये मूवी अभी रिलीज होने वाली है, इसका स्टार कास्ट ये है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सीरियल आप लोग बहुत से लोग देखते हैं, तो तारक मेहता के उल्टा ये सीरियल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सीरियल में काफ़ी सारी बार बहुत सारे मूवीज हैं जिसको प्रमोट किया गया है। सलमान खान का मूवी ट्यूबलाइट आया था तो उसको प्रमोट किया था। देन बहुत सारे मूवीज ऐसे हैं जिसका स्टार कास्ट आता है, वो सीरियल में ही एक ऐसा वो सीरियल इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें स्टार कास्ट आने वाला होता है, वो उनके मूवी का प्रमोशन भी होता है, स्टार कास्ट भी होता है और एक एपिसोड वो सीरियल का भी हो जाता है। तो पब्लिसिटी ये एक तरीका है बाय विच products and services are promoted. Then public relations is also one way in which what happens is, like say for example when Jio was launched, तो तब क्या किया गया था, the media was called, all the well known people from the various industries were कॉल्ड एंड फिर एक लार्ज मास स्केल में जियो को लॉन्च किया गया। सो पब्लिक रिलेशंस इज वन मेथड। पब्लिक रिलेशंस में द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द आउटसाइड कस्टमर्स ऑल्सो एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। जो इंटरनल कस्टमर्स जो होते हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, वो ये सब जो होता है इट गेट्स कवर्ड अंडर द पब्लिक रिलेशंस। देन पर्सनल सेलिंग इज 1-to-1 सेलिंग, जो हम लोग नॉर्मली जैसे कि एमवे हो गया या ओरिफ्लेम हो गया या कोई भी आप शॉप में भी जब भी जाते हो तब देयर द पर्सनल सेलिंग टेक्स प्लेस। नाउ IMC is basically it is an integrated program. It's a communication strategy through which we try to reach to the customers. Any company tries to reach to the customers, it tries to create an awareness for the product, it tries to create a brand image. So सबसे पहला बात तो it also requires some planning, some strategies. So what are the strategies? The first and foremost thing is कि कौन सा type of message कौन से target audience के लिए, like say for example rural area में if you want to advertise a product, so obviously वहाँ पे you cannot use hi-fi English language या फिर बहुत technical jargons वगैरह आप use नहीं कर सकते हो, वहाँ पे simple language को use करना पड़ेगा ताकि वो लोगों को आसानी से समझ में आए and what message the company wants to convey that can be conveyed in a proper manner. Similarly अभी say for example महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज पे फोकस होता है, अदर स्टेट में जैसे गुजरात में गए तो वहाँ पे वहाँ का लोकल लैंग्वेज जैसे कि गुजराती लैंग्वेज है, उस जो मैसेज होता है वो गुजराती लैंग्वेज में होना चाहिए। सो पहली बात तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये प्रोसेस में जो आता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर
what purpose communication is being done, what is the purpose of this communication, इसका objective क्या है, फिर what type of message you want to communicate, फिर हम कौन से channels use कर सकते हैं, जैसे we can use print media, we can use radio, we can use television. So there are different methods through which communication can be conveyed. So उसके लिए हमारा channels क्या होगा, उसका कॉस्टिंग कितना होगा, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रमोशन मिक्स वी वांट टू यूज, लाइक प्रमोशन मिक्स में हम एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग करना चाहेंगे. Sometimes sponsorships are done through events also. Products and services are promoted. जैसे अभी IPL की मैच होती है तो IPL ये इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज आके अपना स्पॉन्सरशिप देती है. तो ये स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, द प्लेयर्स जो अटायर पहनते हैं उनके शर्ट्स के पीछे वो कंपनी का नाम होता है, ब्रांडिंग होती है बेसिकली वो कंपनी का. देन जो इन बिटवीन जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो जिस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप किया होता है उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट भी वो इवेंट के बीच में, मतलब गेम्स के बीच में जो एड्स आती हैं वो उस कंपनी से रिलेटेड एड्स होती हैं. तो कैसे कौन से टाइप ऑफ प्रमोशन मिक्स हम यूज करेंगे एंड इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे. देन इवैल्यूएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, whether the communication strategies that we are using, the promotion mix we are using, it is correct or not, इससे हमको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, whether there is an incremental sales or not. All these things need to be measured and evaluated, and in case of any deviation then corrective steps needs to be taken. So all these aspects come under the IMC planning process. Now most important aspect in IMC is communication. So communication involves what? There is a sender. There is this sender वो क्या करता है, he encodes a message, means एक message को formulate किया जाता है. Then through different channels it is transmitted to the receiver. The receiver understands the message and he gives a feedback to the message. Now यहाँ पे when an advertiser advertises a product, so क्या होता है, एक स्पॉन्सर होता है, एक कोई कंपनी है, से फॉर एग्जांपल रेमंड्स लेंगे तो रेमंड्स क्या कंपनी क्या करती है, वो आके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बोलती है कि हमारा एक एड हमको टीवी पे दिखाना है. तो उस हिसाब से रेमंड के हिस्ट्री के हिसाब से, रेमंड कितनी साल पुरानी कंपनी है, रेमंड के प्रोडक्ट का मार्केट में क्या स्टैंडिंग है, उस हिसाब से एडवर्टाइजर एक एडवर्टाइजमेंट बनाता है. फिर ये एडवर्टाइजमेंट को रेडियो एंड टेलीविजन के थ्रू इसको ऑडियंस तक दिखाया जाता है. देन द ऑडियंस व्हेन दे सी द एड देन वो रिकलेक्ट करते हैं, द ऑडियंस रिकलेक्ट्स कि ओके रेमंड ये एक जानी पहचानी कंपनी है, पहले इसके एड्स ऐसे आते थे, अब इसका एक नया एड आया है या फिर प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं. ये अवेयरनेस कस्टमर्स के दिमाग में फिर से आता है. एंड देन इसमें से हो सकता है कि many customers will be induced to go and buy Raymond's के products. So यहाँ पे जो feedback होता है it is in the form of a purchase made by the customer. In IMC the most used tool is advertising. It is used for large scale marketing, large scale promotion, and we call it as a supplement of salesmanship because salesperson क्या करता है, he goes and tells about the product and the service to the customers or to the users of that product and service. But ये salesman जाने के पहले ही ये जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो क्रिएट होती है इट इज डन थ्रू एडवर्टाइजिंग. दैट्स व्हाई वी से दैट इट सपोर्ट्स सेल्समैनशिप एंड इट इज एन इम्पर्सनल सेल्स पर्सन बिकॉज पर्सनल व्हेन द सेल्स पर्सन goes and visits वहां पे उसका एक पर्सनल टच होता है. बट इन एडवर्टाइजिंग इट इज एन इम्पर्सनल सेल्समैनशिप एंड इट ट्राइज टू परसुएड पीपल to buy a product. So it uses persuasive techniques. Now advertising is a paid form of communication. यहाँ पे एक कंपनी होती है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जिसको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को एडवर्टाइज करना होता है. तो ही
मेक्स अ पेमेंट टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट देता है कि मेरे लिए एक एड बनाओ. सो दैट्स व्हाई इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. देयर इज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, द मैन्युफैक्चरर और द सेलर, बिकॉज ही इज गोइंग टू pay money for that ad, he becomes the sponsor. So he is there is a sponsor. Then advertising का goal क्या होता है, objective क्या होता है, to provide information. Then it creates awareness about that company also. कोई ad बनता है तो product and service के साथ साथ वो company का भी एक image बनता है, goodwill create होता है. Then it is target oriented. हर एक ad जो होता है वो एक particular crowd of people के लिए, particular mass के लिए होता है. Certain ads are prepared meant only for the children. Certain ads are prepared meant only for adults. So it is target oriented. It creates awareness, and in that ad important information is shared. We also say that advertising, it is an art, science and profession, in the sense that एक ad को creatively बनाने के लिए artistic थॉट लगता है. इट्स अ साइंस बिकॉज अगेन इसमें भी काफ़ी सारा प्लानिंग होता है, सिस्टमैटिक तरीके से एड बनता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होती हैं एड बनाने के लिए. दैट्स वाई इट्स अ साइंस, बिकॉज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं. एंड इट इज़ अ प्रोफेशन बिकॉज एड इंडस्ट्री एक अपने आप में ही एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. एडिटर्स होते हैं, कॉपीराइटर्स होते हैं, देन देर आर ये जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, बहुत सारे then there are agencies. So ad industry in itself एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशन भी है, एंड इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. काफ़ी सारे लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम इस इंडस्ट्री से मिलता है. सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ प्रोफेशन. नाउ एड का काम क्या होता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट का काम क्या होता है, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, देन इट क्रिएट्स अ ग्राउंड फॉर sales promotion, then it helps to remove the misunderstandings. कभी कभी temporary कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या फिर रॉन्ग मैसेज कभी कभी लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्रिएट हो जाता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एड्स को यूज़ किया जाता है. देन इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटर कि वो एड को देखकर कस्टमर्स इंड्यूस हो टू बाय दैट प्रोडक्ट. अभी बहुत सारे एड्स में क्या करते हैं, डिस्काउंट्स डालते हैं, कभी फ्री ऑफर्स वगैरह सब ये करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, इवन आप जब भी रास्ते पे चलते होते हो, शॉप्स में लिखा रहता है बाय सून 2+1 फ्री ऑफर्स ऐसे. तो ये क्या होता है, दे आर डिस्प्लेइंग, एक एड डाला हुआ रहता है. तो इससे क्या होता है, कस्टमर इंड्यूस होता है टू बाय दैट प्रोडक्ट. Then it is an effective way of reaching to the customer, and it encourages the customer to buy the product. Advertising is an important tool in IMC because ये product and service का existence बताने के लिए use होता है. ये adequate information share करता है, communication create करने के लिए, awareness create करने के लिए, ब्रांड इमेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फेवरेबल इमेज क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन IMC. The use of advertising is whenever new products are to be launched, especially when the product is in the growth stage and in the introduction. पहली बात तो introduction stage या growth stage, तब advertising पे emphasis ज़्यादा किया जाता है to promote the product. आप through with the help of advertising you can reach different markets. So expansion of market, increase in scale, सेल्स, देन कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए, अपना गुडविल को और क्रिएट करने के लिए, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, सेल्समैनशिप को सपोर्ट करने के लिए. एड इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं. देन इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स का जो प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह होता है वो
इस इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं, इन एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, एंड इट हेल्प्स इन द ओवरऑल इंक्रीज, लाइक बहुत से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका बढ़ता है. बट देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस. हर एक पहलू का एक पॉजिटिव साइड भी होता है एंड एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, जिससे कि प्रोडक्ट एंड सर्विस का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. क्या होता है, बहुत बार प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज नॉट दैट मच, बट द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर दैट हैज इनकर्ड adds up to that cost. So advertising is a costly affair. Many a times social values are degraded. Sometimes cheap form में advertisements किए जाते हैं. There are different types of advertisements like surrogate advertising वगैरह होता है. अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत सारे एडवर्टाइजिंग में फॉलो किए जाते हैं. एग्जैजरेशंस होते हैं. बहुत बार सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स किए जाते हैं. सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स में वो सेलिब्रिटी ने शायद वो प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया होता है, बट स्टिल दे एंडोर्स दैट प्रोडक्ट. और ये सेलिब्रिटीज का एक फैन फॉलोइंग होता है, तो पीपल ब्लाइंडली दे बाय दोज प्रोडक्ट्स. सो बहुत बार ये सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है. कुछ जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो चीप टेस्ट में बनाए जाते हैं. कुछ अडल्ट रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो हालांकि नहीं दिखाने चाहिए बट फिर भी बनाए जाते हैं. सो दीज आर सर्टन डिसएडवांटेजेस. कभी कभी इंफीरियर प्रोडक्ट्स की सेल के लिए भी एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं. So all these are certain disadvantages of advertisement, yet advertisement is one of the strong tools of IMC. There are different types of advertising. कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग होती है, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग होती है. इन कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग टेलीविजन इज यूज, रेडियो इज यूज. देन देयर इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग में आउटडोर व्हीकल एडवर्टाइजिंग्स होते हैं. फिल्म सिनेमास के थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया जाता है. देन देर आर ट्रेड एडवर्टाइजिंग्स होती हैं. स्पेशलिटी मीडियम एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं. बिलबोर्ड्स होते हैं. पोस्टर्स होता है. ट्रेड शोज आर देयर. सो डिफरेंट forms of advertisements are done. There are different media options available, जैसे कि सैटेलाइट टेलीविजन हो गया. आजकल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होता है. डिजिटल एडवर्टाइजिंग होता है. केबल टीवी से होता है. रेडियो. देन मोबाइल एडवर्टाइजिंग है. इवेंट्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग होता है, जैसे कि म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गया, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए. बिलबोर्ड्स लगाया जाता है. मूविंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जैसे कि बस ट्रेन्स पे वगैरह एड्स डाले जाते हैं. एंड ऑल दीज आर द डिफरेंट emerging media options which are used in advertisements. So we'll continue with this chapter in the next session. Till that, stay tuned. Thank you.